Hello, once again, good morning, each and everyone. Welcome you all on this today's session. Today, we are going to cover some important topic from the chapter Human Health and Disease. In the previous lecture, we had seen the innate immunity. आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले? In today's lecture, we are going to cover with the acquired immunity, the second type of immunity that we are going to cover. उसके बाद हम देखेंगे सेल्स दोज वर इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए कौन कौन से सेल इन्वॉल्व है तो उनके टाइप्स देखेंगे. एंड फाइनली इफ विल गेट द टाइम देन विल सी द वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन जो जोरों शोरों से चल रहा है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेंस्ट कोविड-19. तो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर विद द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ वेस्टिंग टाइम. Already in the previous lecture I told you about types of immunity. Immunity के दो types होते हैं मेरे प्यारे बच्चों. There are two types of immunity. तो थोड़ा सा previous lecture का revision ले लेते हैं. Immunity के दो type है. The first one that is called as innate immunity, and the second type that we are going to study in today's lecture that is called as acquired immunity. Friends, इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी इज अ प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्रॉम बर्थ. तो ये कब से है? इट इज अ प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्रॉम अ बर्थ. तो ये बर्थ से हमारे बॉडी में है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इनबॉर्न इम्यूनिटी. और ये जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है इट इज गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस. देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. दिस इम्यूनिटी डू नॉट रिक्वायर previous exposure or previous experience of pathogen और foreign substance. तो पहले का एक्सपीरियंस की कुछ जरूरत नहीं है इनेट इम्यूनिटी को. इज क्लियर? तो इनेट इम्यूनिटी हमने देखा, इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी ड्यू टू सम बैरियर्स. तो बैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनेट इम्यूनिटी. तो फर्स्ट बैरियर हमने कौन सा देखा था? एनाटॉमिकल बैरियर. Second barrier we had seen that is called as physiological barrier. The third barrier we had seen that was a phagocytic barrier. And the last barrier we had seen that was a inflammatory barrier. कौन सा था वो? Inflammatory barrier. तो due to presence of these four different type of barrier there is an innate immunity. Is clear? Innate immunity is only due to presence of these four different type of barriers. You have to explain. इसके ऊपर short note आता है मेरे प्यारे बच्चों, short note. Now we are going to start with acquired immunity. तो देखो we started with acquired immunity. तो कहाँ तक थे हम? बोलो अभी आप ही. Acquired immunity. What was the first point for acquired immunity? What are the characters? So it is specific for specific pathogen. Yeah, it is a specific for specific pathogen. So it is a specific type of immunity. It develop after birth. ये कब develop होती है? It develop after birth. Therefore it is called as acquired or adaptive. इसको और एक नाम क्या है? Adaptive immunity भी है. It is also called as adaptive immunity. Is it clear? Now ये जो now this acquired immunity which has get developed after birth, therefore it is also called as adaptive immunity. And it require, इसको क्या चाहिए? It require previous exposure to pathogen or foreign substance. इसको previous exposure चाहिए किसका? Pathogen का. Is clear? और it require previous experience. इसको एक previous experience चाहिए किसका? Foreign substance का. तो विदाउट दैट प्रीवियस एक्सपीरियंस दिस इम्यूनिटी इज नॉट गोइंग टू गेट डेवलप. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका ये, इट रिक्वायर प्रीवियस एक्सपोजर ऑफ फॉरेन सब्सटेंस. ये जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज ओनली फाउंड इन अ वर्टिब्रेट. ये कहाँ दिखाई देती है हमको? फाउंड ओनली इन अ वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उन्हीं एनिमल में हमको ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिखाई देती है. नाउ दिस इम्यूनिटी, इन दिस इम्यूनिटी द इम्यून सेल्स, जो इम्यून सिस्टम के सेल है, द इम्यून सिस्टम सेल्स, दोज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस इम्यूनिटी.
तो these immune system cells, they are going to produce antibodies. So they are going to produce antibodies. Wait for 1 minute. Yeah, they are going to produce antibodies. Is it clear? So there are different type of cells are responsible for formation of these acquired immunity. और ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एंटीबॉडीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स. ये क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन. एंटीजन क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं. एंटीजन भी क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ प्रोटीन. तो एंटीजन भी प्रोटीन है और एंटीबॉडी भी क्या है? प्रोटीन है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी? तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन आर द प्रोटीन्स दोज आर प्रेजेंट ऑन द फॉरेन सब्सटेंस. अगर फॉर एग्जांपल ये है फॉरेन सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द वायरस और बैक्टीरिया or any other foreign material, when this foreign material enter inside in our body, now on the surface of these foreign materials some special type of proteins are present. तो जो प्रोटीन है इसके ऊपर है इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे एंटीजन. तो these blue color dots are showing what? Antigen. And when these foreign substance enter inside in our body, तो our immune system cells, स्पेशली कौन से? बी लिम्फोसाइट्स. तो बी लिम्फोसाइट नाम के स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं. वो क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स अगेंस्ट टू दिस एंटीजन. उनको हम क्या कहेंगे? एंटीबॉडी कहेंगे. तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं? एंटीबॉडी आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज. ये क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज दिस एंटीजन. एंटीबॉडी का काम क्या है? दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज द एंटीजन. इज इट क्लियर? तो ये है इंट्रोडक्शन अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी. Now this acquired immunity is provided with some characteristic feature. So what are the features of acquired immunity? तो यूनिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है मेरे प्यारे बच्चों. यूनिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नाउ सी देयर आर four main features of acquired immunity. The first one that is called as specificity. If you write only these names, then also you'll get a half of mark. So specificity. Second one is the diversity. Second feature क्या है? Diversity. Third one is the differentiate. It is having an ability by which it can differentiate between self and non-self. And the fourth feature of this immunity, that is the memory. So these are four features are of the acquired immunity. First one is the specificity. Now we are going to study in detail. तो देखो specificity क्या है? Now this immunity is a specific for each pathogen. It is ये जो immunity है, it is a specific for each type of pathogen. ये क्या है? हर एक पैथोजन के लिए अलग अलग है. It is a specific for each type of pathogen. For example अभी कोरोना वायरस से क्या हो रहा है? कोविड डिसीज हो रहा है. तो कोविड डिसीज के लिए हमारे बॉडी में स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी है. इज क्लियर? अगर इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से. तो प्लाज्मोडियम के ऊपर जो एंटीजन है उससे फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में अलग टाइप के एंटीबॉडी है. तो हर एक डिसीज और हर एक कॉजल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इसके पास क्या है? अलग अलग क्या है? एंटीबॉडी है. तो इट इज अ स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक पैथोजन. तो वी आर टॉकिंग ऑन द यूनिक फीचर ऑफ acquired immunity. In this we had seen the first one, that is a specificity. तो स्पेसिफिसिटी में मैंने बोला कि इट इज अ स्पेसिफिक फॉर, तो ये क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक फॉर each type of pathogen. Each type of pathogen. This topic is a important, very important topic. इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है मेरे प्यारे बच्चों 3 मार्क के लिए. Is it clear? Now this acquired immunity, it is going to produce a specific antibody. तो ये जो acquired immunity, this our immune system, ये जो immune system है हमारा, it is going to produce a specific antibody or it is going to produce
स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट। अब ये टी लिम्फोसाइट क्या है? दीज आर द क्लोन्स ऑफ ये टी लिम्फोसाइट, दोज लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? लिम्फोसाइट आर द डब्ल्यूबीसी, ये एक प्रकार के क्या है? डब्ल्यूबीसी है। तो दोज डब्ल्यूबीसी विल गेट मैच्योर इनसाइड इन द थाइमस, उनको हम क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज गोइंग टू डेवलप अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये बनाएंगे? अगेंस्ट एंटीजन और पैथोजन। पैथोजन किसको कहते हैं? डिसीज कॉजिंग एजेंट। जिससे डिसीज हो रहा है इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेंगी? उसके ऊपर जो एंटीजन है, वो जो पैथोजन है, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी और स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट बनाएंगे। ये है डिस्क्रिप्शन अबाउट अ स्पेसिफिसिटी। व्हाट इज द सेकंड फीचर? तो सेकंड फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? तो आवर इम्यून सिस्टम, ये जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, इट कैन रिकॉग्नाइज, मीन्स इट कैन आइडेंटिफाई अ वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन। ये क्या कर सकती है? आइडेंटिफाई कर सकती है किसको? अ वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन। इज इट क्लियर? इट इज हैविंग अ एबिलिटी to differentiate between various foreign molecules। ये बहुत सारे जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स है, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिसीज, उनको ये पहचान सकती है। कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। तीसरा क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ यानी खुद के, एंड नॉन सेल्फ यानी क्या? बाहर के। तो दिस इम्यूनिटी कैन आइडेंटिफाई बिटवीन ओन एंड फॉरेन। तो ये अपने खुद के सेल को, अपने खुद के मॉलिक्यूल को पहचान सकती है। इट कैन आइडेंटिफाई आवर ओन सेल्स एंड ओन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज और सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? तो ये अपना और दूसरों का समझ सकते हैं। बाहर से कौन आया है, अंदर अपना कौन है, तो इसके बीच में ये फर्क कर सकता है। कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज अ मेमोरी। तो सम सेल्स ऑफ दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दे आर गोइंग टू रिटेन द मेमोरी ऑफ पैथोजन। वो क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं किसको? मेमोरी को। यानी दे आर गोइंग टू रिटेन द एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस उनका आया है विद दिस पैथोजन, इस एक्सपीरियंस को ये क्या करेंगे? मेमोराइज करके रखेंगे। दे आर गोइंग टू रिटेन द मेमोरी ऑफ पैथोजन, मेमोरी ऑफ पैथोजन। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन डिटेल। देखो अभी तो मेमोरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मेमोरी इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। व्हेन अ स्पेसिफिक पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक पैथोजन है, व्हेन दिस स्पेसिफिक पैथोजन एंटर इन योर बॉडी फॉर फर्स्ट टाइम, ये अगर फर्स्ट टाइम अपने बॉडी के अंदर आया तो क्या होगा? आवर इम्यून सिस्टम, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, अभी कौन सी इम्यून सिस्टम है? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ये क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे, एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन आवर इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। इसके अगेंस्ट क्या करेंगे? हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगी। ये एंटीबॉडीज है, ये क्या करेंगे? एंटीबॉडीज है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद वो क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, नहीं तो डिस्ट्रॉय करेंगे, एंड फाइनली दे आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस पैथोजन फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये क्या है? ये एक तरह का एनकाउंटर है। When any specific pathogen enter in our body for the first time, तो our body is going to generate a immune response। तो हमारी बॉडी क्या करेंगी? It is going to produce a immune response। Our body is going to produce a immune response and it is going to remove this pathogen from our body। ये क्या करेंगी? रिमूव करेंगी। रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम आवर बॉडी। तो ड्यूरिंग दिस एनकाउंटर, जो कुछ फाइटिंग हुई इधर, फाइटिंग, तो इस फाइटिंग का जो एक्सपीरियंस है, तो सम इम्यून सिस्टम सेल्स, कुछ इम्यून सिस्टम के क्या है? सेल्स है,
वो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू रिटेन, वो कंजर्व करेंगे इस एक्सपीरियंस को, दे आर गोइंग टू रिटेन द मेमोरी ऑफ दिस पैथोजन और दिस एनकाउंटर। ये जो एनकाउंटर हुआ, ये जो फाइटिंग हुई है, इसकी मेमोरी वो क्या करेंगे, कंजर्व करके रखेंगे। एज अ रिजल्ट व्हेन दिस सेम पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी सेकंड टाइम, अगर सेकंड टाइम आफ्टर फ्यू मंथ्स और वीक इफ द सेम पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी, दूसरी बार अगर ये पैथोजन आता है इन आवर बॉडी, एट दैट टाइम द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, तब हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसे होगा, द रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज टू मच क्विक, वो कैसे रहेगा, इट इज टू मच क्विक एंड स्ट्रॉन्गर। Why the immune system response is too much quick and stronger when the same pathogen enter in our body for the second time? Due to presence of memory. तो some cells of immune system, जिसको क्या कहते हैं, memory T cells कहते हैं, they are going to retain the memory of that pathogen, and due to this memory, second time when the same invader or pathogen enter in our body, so they are going to show the quick and stronger response. Is this clear? Got it? Is there any doubt, difficulty up to here? See my friends, till now we had seen the some important characteristic feature of acquired immunity. थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं. Acquired immunity is also called as a specific immunity. Why? Because it is a specific for specific type of pathogen. Is it clear? So it is giving a protection against a different type of foreign agents like bacteria, viruses, as well as toxins and transplanted tissue. Is it clear? तो ये जो immunity है, it develop after birth, therefore it is also called as adaptive immunity. इसको हम क्या कहते हैं, adaptive immunity कहते हैं. Is it clear? Here little spelling mistake है, इसको कहते हैं adaptive immunity. Is it clear? और ये कहाँ दिखती है, This adaptive immunity is seen only in vertebrates. किधर दिखती है, ये vertebrates में दिखती है. इसके ऊपर MCQ आ सकता है. Is it clear? And it is a supplement the protection provided by innate immunity. तो ये क्या है, एक supportive है, किसको, innate immunity को. Is it clear? समझ में आ गया? Now we are going to deal with the types of immunity. Before this, ये जो है, ये क्या है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो मैंने आपको अभी बताए थे. स्पेसिफिसिटी इज द फर्स्ट फीचर, डाइवर्सिटी इज द सेकंड फीचर. इसके ऊपर 3 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है, हर एक पॉइंट को आपको 1-1 मार्क मिलेगा. द थर्ड वन, दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी दिस इम्यूनिटी इज गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन, इसके पास क्या है, एबिलिटी है बाय विच इट कैन आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स और सेल्स. इसी के साथ some says they are going to retain the memory, so that is called as a memory. So these are 4 features are the characteristic feature of acquired immunity. Is it clear? Got it? चलो आगे चलते हैं. Now we are going to start with the types of acquired immunity. Types क्या है, types of acquired Yes, sir. immunity. Is there any problem? कुछ प्रॉब्लम है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, No, sir. now we are going to study about the types of acquired immunity. Basically acquired immunity is of 2 types. इसके 2 टाइप है. एक क्या है, the first one that is called as active immunity. Majority of students they will get confused in this topic. तो एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, एक्टिव एक्वायर्ड नेचुरल, एक्टिव एक्वायर्ड आर्टिफिशियल, ये जो है इसमें गलत हो जाती है. तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव. अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे याद रखना है, एक्टिव यानी दोज प्रोसेसेस आर एक्टिव, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और जो प्रोसेसेस पैसिव होते हैं दे डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी. तो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जो प्रोसेस रन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैसिव प्रोसेसेस, और दोज प्रोसेसेस रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी दे आर कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेसेस.
अभी एक्टिव के लिए हमको कुछ करना है, पैसिव क्या है, फोकट में मिलने वाला है। इज इट क्लियर? जो फोकट में मिल रहा है विदाउट वेस्टिंग एनर्जी उसको हम कहेंगे पैसिव, और जिसके लिए कुछ खर्च करना है, जिसके लिए कुछ फाइटिंग करनी है, जिसके लिए कुछ प्रिपेयर करना है, उसको कहेंगे एक्टिव। देखो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं है। तो देखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसको कहते हैं? तो दिस इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी होती है एक्टिव, दिस इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय, ये कैसे डेवलप होती है? इट इज एक्वायर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। तो इसके लिए हम हमारे बॉडी को क्या प्रोड्यूस करना है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। तो दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप इन आवर बॉडी ओनली आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यानी मैंने मेरे बॉडी में खुद एंटीबॉडी डेवलप की है और उसके बाद ये इम्यूनिटी मेरे बॉडी में डेवलप हुई है, उसको मैंने कहा है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी किसको कहेंगे? दिस इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस बाय, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस बाय रेडीमेड एंटीबॉडी। अगर मैंने रेडीमेड एंटीबॉडी ली है तो उससे जो मेरे को प्रोटेक्शन मिला है उसको मैंने क्या कहा है? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इज देयर एनी डाउट, डिफिकल्टी अप टू हियर? इधर तक समझ में आ गया? Yes, sir. नाउ वी आर सीन अबाउट एक्टिव Yes, एंड sir. पैसिव, इसके बीच का फर्क है तो हमने देख लिया। नाउ एक्वायर्ड एंड पैसिव बोथ आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स, दोनों के दो सब टाइप्स हैं। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नाउ हियर द फर्स्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज नेचुरल। पहले हम क्या देखने वाले? द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज अ नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ऑलरेडी मैंने कहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो रही है? इट इज अ डेवलप आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो दिस इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। तो नेचुरली ये डेवलप हुई है, नेचुरली हमने ये एक्वायर्ड की है, एंड इसके लिए हमने क्या किया है? एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस की है खुद ने। और ये सारी प्रोसेस कैसे हुए? नेचुरली हुए। तो दिस इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन। तो दिस इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन। इज इट क्लियर? अगर कोई बंदा कोविड पॉजिटिव आता है और नेचुरली वो ठीक हो जाता है तो उसके बॉडी ने एक्सपीरियंस लिया किसका? कोरोना वायरस का, एंड आफ्टर फाइटिंग विथ कोरोना वायरस उसके इम्यून सिस्टम ने अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ कोरोना वायरस उसके बॉडी ने क्या किए? खुद के एंटीबॉडी डेवलप किए। तो उससे जो उसको इम्यूनिटी मिली है, उससे जो उसको प्रोटेक्शन मिला है, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये कब डेवलप होती है? इट हैज गेट डेवलप only after the entry of pathogen in the body. It develop only after entry of pathogen in our body. जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा तब हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अगेंस्ट प्रोटीन बनाएगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगी, और उससे जो हमारे को शील्ड मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसको हम कह रहे हैं नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इट डेवलप ओनली आफ्टर द एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी। तो फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया है और टेक्स्ट बुक में आपके क्या एग्जाम्पल दिया है? द पर्सन हु रिकवर फ्रॉम द मीजल्स, द पर्सन हु रिकवर फ्रॉम मीजल्स, जो पर्सन रिकवर हुआ है किससे? मीजल्स से। द पर्सन हु रिकवर फ्रॉम द अटैक ऑफ मीजल्स, he or she develop acquired active immunity। उसने क्या डेवलप किया? नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इज क्लियर? फॉर द लाइफ टाइम। जो पर्सन मीजल से रिकवर हुआ है, जो पर्सन कोविड से रिकवर हुआ है, तो उसके पास क्या है? उसके अगेंस्ट रेडीमेड क्या है? एंटीबॉडी। रेडीमेड नहीं, उसके पास स्टॉक है एंटीबॉडी का। अगर वो पैथोजन फिर से दोबारा आएगा तो एट दैट टाइम रिस्पॉन्स कैसे रहेगा इम्यून सिस्टम का? स्ट्रॉन्ग एंड सीवियर।
and quicker. Is it clear? तो ये now the second one is the artificial acquired active. हमने पहले क्या देखा? नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव देखा. अभी हम देखेंगे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. अभी देखो आर्टिफिशियल क्या है? इट इज एक्वायर्ड आर्टिफिशियली. आर्टिफिशियली यानी ये नेचुरली से अपोजिट है. इधर हमको डिसीज हुआ नहीं है, इधर कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आया नहीं है. तो हमारे बॉडी ने क्या किया है? एक्टिवली एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए. तो हमने इधर क्या किया है? हमने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए हैं विदाउट एंट्री ऑफ पैथोजन इन आवर बॉडी. तो ये जो इम्यूनिटी है इट इज एक्वायर्ड आर्टिफिशियली. इट इज एक्वायर्ड आर्टिफिशियली बाय वैक्सीनेशन. अभी वैक्सीनेशन से ये इम्यूनिटी डेवलप होती है. अभी कोई बंदा है हु इज नॉट सफरिंग फ्रॉम, व्हाई वी आर गिविंग अ कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन टू ईच एंड एवरीवन. अभी जो बंदे क्या है नॉर्मल है, इनको हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्रोवाइडिंग कोवैक्सीन. इनको हम क्या दे रहे हैं? कोवैक्सीन दे रहे हैं. वो क्या है? नॉर्मल है. वो क्या है? इनका कोविड का टेस्ट क्या है? कोविड टेस्ट इनका क्या है? निगेटिव है. इज इट क्लियर? उनको हम क्या दे रहे हैं? वैक्सीन दे रहे हैं. कौन सा दे रहे हैं? कोवैक्सीन. तो कोवैक्सीन, वैक्सीन में क्या होता है? व्हाट इज अ वैक्सीन? वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रिपरेशन. वैक्सीन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इट इज एन एंटीजेनिक प्रिपरेशन और इट कंटेन हीट किल्ड और आर्टिफिशियली वीकन पैथोजेंस. ये क्या है? इट कंसिस्ट आर्टिफिशियली. वैक्सीन में क्या होता है? इट कंसिस्ट आर्टिफिशियली वीकन पैथोजेंस, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज. तो आर्टिफिशियल वीकन पैथोजेंस है और देयर टॉक्साइड्स or toxins of that particular pathogen which is responsible for formation of disease. So it is an antigenic preparation which contain artificially weakened pathogens or their toxides or their toxins. So these antigenic preparation ये क्या करता है? It is going to stimulate our immune system. तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? पंप करता है. तो इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम. तो पैथोजन तो आया नहीं, बट पैथोजन के ऊपर जो प्रोटीन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं? ठूस लेते हैं यानी इंजेक्ट करते हैं. इज क्लियर? तो ये जो एंटीजेनिक प्रिपरेशन है ये क्या करता है? इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. तो इससे क्या होता है? हमारे बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि कोई तो भी फॉरेन प्रोटीन आया है. तो हमारी बॉडी क्या करेंगी? इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन. Is it clear? For example, so these antibody before entry of that pathogen only by performing vaccination we are going to develop an antibody inside in our body, and when the actual pathogen is going to enter in our body, so at that time we are having a ready-made stock of antibody to fight against that pathogen. So this type of immunity is called as artificially acquired active immunity. So vaccination से we are going to treat a different. We treated what are the different example of vaccine? वैक्सीन के अलग अलग एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन ले लो. पोलियो का वैक्सीन है, बीसीजी का वैक्सीन है, बीसीजी. और जो हमारा अभी जो फेमस है वो कौन सा है? कोविशील्ड है, कोविशील्ड. उसके बाद क्या है? कोवैक्सीन है. तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन्स. तो दीज वैक्सीन्स आर यूज टू प्रोड्यूस और डेवलप आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. तो हमारे बॉडी ने एक्टिवली क्या किए? खुद के एंटीबॉडी डेवलप किए, बट कैसे? आर्टिफिशियली, विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ दैट पैथोजन, विदाउट सफरिंग फ्रॉम डिसीज वी डेवलप एंटीबॉडी इन आवर बॉडी. दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इज देयर एनी डाउट, डिफिकल्टी? No, sir. तो टिल नाउ वी फिनिश विद द टू टाइप्स. एक्टिव के दो टाइप हमने देखे, एक नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा हमने देखा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इज इट क्लियर? चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी. पैसिव के भी दो टाइप है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैसिव एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. कौन से? नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी
और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अभी नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? देखो, नेचुरली ये हमको मिल रहा है विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट, वी आर गेटिंग अ रेडीमेड। पैसिव मीन्स व्हाट? रेडीमेड एंटीबॉडी। पैसिव मीन्स व्हाट? रेडीमेड एंटीबॉडी। हमको इधर रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रहे हैं, नेचुरली मिल रहे हैं। तो नेचुरली हाउ वी आर गेटिंग अ रेडीमेड एंटीबॉडी? तो वी आर गेटिंग अ रेडीमेड एंटीबॉडी फ्रॉम आवर मदर। मदर से हमको क्या मिलते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडी मिलते हैं बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ व्हेन वी आर ग्रोइंग inside in the womb of our mother, तो थ्रू हर प्लेसेंटा, फ्रॉम द मदर प्लेसेंटा, मदर के प्लेसेंटा से। तो देखो, मदर का प्लेसेंटा नहीं रहता है, प्लेसेंटा इज अ कंबाइंड ऑर्गन। द सम पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज प्रोड्यूस फ्रॉम मदर एंड सम पार्ट वो एम्ब्रियो का भी रहता है। तो हियर बिफोर बर्थ द रेडीमेड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर फ्रॉम, तो जो एंटीबॉडी रहते हैं तो वो एंटीबॉडी हमको मिलते हैं मम्मी से, फ्रॉम आवर मदर टू हर फिटस। तो मदर से उसके फिटस को रेडीमेड एंटीबॉडी मिलते हैं किससे? थ्रू द प्लासेंटा, थ्रू द प्लासेंटा। तो व्हेन वी आर गेटिंग अ रेडीमेड एंटीबॉडी बिफोर बर्थ फ्रॉम आवर मदर थ्रू हर प्लासेंटा, दैट इज कॉल्ड एज, उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल acquired passive immunity. After birth also we are getting some antibody after birth from our mother. So after birth we are getting a ready-made antibody from our mother through her milk. तो मिल्क से जो हमको रेडीमेड एंटीबॉडी मिलते हैं विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो मिल्क है उसके, उसी को हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम। वी आर गेटिंग अ रेडीमेड एंटीबॉडीज थ्रू द मिल्क, थ्रू द मदर्स मिल्क एज वेल एज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम किसको कहते हैं? कोलोस्ट्रम क्या रहता है? इट इज अ येलो कलर स्टिकी लिक्विड which has get come before the actual flow of milk which has get start during the lactation period. म्हणजे नवीनच प्रसूत झालेल्या स्त्रीमध्ये जेव्हा जे पहिलं दूध येतं ज्याला आपण काय म्हणतो? चीक. इट इज अ येलो कलर स्टिकी लिक्विड विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ antibodies, specially immunoglobulin A. So these antibodies, the child is going to receive these antibodies from his or her mother, from his or her mother. And these antibodies, ये जो antibody mother से मिल रहे हैं, these antibodies they are going to provide natural acquired passive immunity. But ये जो natural acquired passive immunity है ना, दिस नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज अ शॉर्ट लीव. ये कैसे होते हैं? शॉर्ट लीव इम्यूनिटी होती है. इट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. ये शॉर्ट लीव इम्यूनिटी होती है. इज दिस क्लियर? गॉट इट? कोई डाउट डिफिकल्टी है? ये सारे हम किसके टाइप देख रहे हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के. नो सर. नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव हमने देखा. अभी हम देखेंगे नाउ द सेकंड टाइप इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. देखो दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव जिधर जिधर वर्ड आ रहा है उधर उधर आपको याद रखना है. वी आर गेटिंग अ रेडीमेड एंटीबॉडी. तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? इट इज अ डेवलप बाय, ये कैसे डेवलप हो रही है? बाय इंजेक्टिंग. हम इधर क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू इंजेक्टिंग द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज. हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? रेडीमेड एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर रहे हैं यूजिंग सीरम, यूजिंग सीरम फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल. तो एनिमल से नहीं तो दूसरे ह्यूमन से हम क्या कर रहे हैं? रेडीमेड एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर रहे हैं यूजिंग अ सीरम. इज क्लियर? अभी कोरोना के टाइम भी देखो क्या हो रहा था. तो लोग क्या करते थे? तो दे आर गोइंग टू डोनेट देयर प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या होता है? ये एंटीबॉडीज होते हैं. प्लाज्मा में क्या होता है? ये एंटीबॉडीज होते हैं. तो हम क्या करते हैं? प्लाज्मा डोनेशन. प्लाज्मा डोनेशन बहुत बार सुना रहेगा आपने. तो प्लाज्मा में क्या रहते हैं? ये एंटीबॉडी रहते हैं. तो दीज एंटीबॉडी दे आर गोइंग टू गिव अ
रेडीमेड और पैसिव प्रोटेक्शन, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी to these peoples. So here we are injecting directly the previously prepared antibodies using a serum from humans or animals. For example के लिए ले लो क्या है, antibodies are obtained from, we are going to obtain antibodies from a hyper immunized horse. So we are going to obtain antibodies from a hyper immunized horse. तो हाइपर इम्यूनाइज हॉर्स से जो हम एंटीबॉडी ऑब्टेन करते हैं, वी आर गोइंग टू इंजेक्ट दिस एंटीबॉडी इन अ बॉडी ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमन के बॉडी में हम ये इसको इंजेक्ट करते हैं टू गिव अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेबीज. अगेंस्ट व्हाट? रेबीज पैथोजन. रेबीज से बचने के लिए जो हम एंटीबॉडी का डोज इंजेक्ट करते हैं, तो वो जो एंटीबॉडी का डोज है वो कहाँ से हमको मिलता है? फ्रॉम द हाइपर इम्यूनाइज हॉर्स. इज क्लियर? और ये भी जो इम्यूनिटी है दैट इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी कैसे है? इट इज ऑल्सो शॉर्ट लिव. ये भी कैसे है? शॉर्ट लिव इम्यूनिटी है. इज देयर एनी डाउट डिफिकल्टी रिगार्डिंग आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी? समझ में आ गया? Yes, sir. चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. देखो मेरे प्यारे बच्चों, हियर विल टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इसका क्विक रिवीजन, ये चार्ट आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी बना लो. वॉट एवर चार्ट दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ नाउ ऑन योर स्क्रीन. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा क्या है? पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी. इधर हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्रोड्यूसिंग, इट इज अ प्रोड्यूस, इट कैन बी डेवलप बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी. एक मिनट. तो हियर देयर इज एन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी और इधर क्या हो रहा है? रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रहे हैं. हियर रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रहा है हमको नेचुरली और आर्टिफिशियली. इज क्लियर? एक्टिव इम्यूनिटी के हमने दो टाइप देखे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी के. एक है नेचुरल और दूसरा क्या देखा हमने? आर्टिफिशियल. नेचुरल में हमने क्या देखा? नेचुरल इम्यूनिटी. तो दिस नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इट एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन. ये किससे डेवलप है? इट हैज गेट डेवलप ड्यू टू इन्फेक्शन. तो अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने एग्जाम्पल दिया था, पर्सन रिकवर फ्रॉम मीजल्स. द पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम मीजल्स develop this natural acquired active immunity for lifetime. इज क्लियर? इसके बाद हमने क्या देखा था? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये कैसे डेवलप होती है? इट इज डेवलप ड्यू टू वैक्सीनेशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर दिया था पोलियो वैक्सीन और क्या दिया था? बीसीजी वैक्सीन, और एक दिया था मैंने अभी जो हम कोवैक्सीन. क्लियर? इसके बाद पैसिव इम्यूनिटी में हमने क्या देखा? पैसिव इम्यूनिटी इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल. नेचुरली वी आर गेटिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम आवर मदर. ये कहां से मिल रहा है? फ्रॉम आवर मदर थ्रू द प्लेसेंटा. ये प्लेसेंटा से मिल रहा है, प्लस किससे मिल रहा है? मिल्क से मिल रहा है. मिल्क और कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रमला आपण मराठीत काय म्हणतो? चीक. इज क्लियर? और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इधर हम क्या कर रहे हैं?
हियर वी आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग द रेडीमेड एंटीबॉडीज. इधर हम क्या डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं, एक मिनट. डायरेक्टली वी आर इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज यूजिंग सीरम. इज क्लियर. फॉर एग्जाम्पल रेबीज का एग्जाम्पल दिया था मैंने इधर. किसका एग्जाम्पल, रेबीज का. इज क्लियर. तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो. तो हियर वी फिनिश विद द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्टिव पैसिव वी हैड सीन. एक्टिव के दो टाइप हमने देखे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. एंड पैसिव के हमने दो टाइप देखे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. इज क्लियर. थैंक यू वेरी मच. कोई डाउट डिफिकल्टी.